Hello my lovely souls, welcome to my channel. Today we are going to see how will be your romantic bond with your future spouse. It's a requested video plus also a general reading. So take only those messages which resonates with you and leave the rest. Like as always, we have two groups, group number 1 and group number 2. Use your intuition and choose any pile which you have drawn into, and I will meet you at group number 1. Hello group number 1, today we are going to see how will be your romantic bond with your future spouse. So we have Knight of Cups, and the High Priestess, the Sun card, Courage card, Traveling and Compromise card. So you will have an optimistic romantic bond with your future spouse. In this connection, both of you will be faithful towards each other. Your love for each other will be very intense. This connection will also be very friendly. Here, one of you or maybe both of you will be very poetic and will love to dedicate love quote or poem to your person. You will be spiritually connected with your other half. Many times, you two will communicate with each other without any word or gesture. In other words, you will be able to sense one another's feeling. If you are watching this video for your future husband, then you will be the most important woman in his life. With the Sun card, your romantic bond with your person will be harmonious and full of fun. Both of you will be in love with one another's warmness or personality. Your connection will be like you can't help but drawn to each other. If you are interested about having a family, then both of you will be very excellent parents. You two will be a power couple. In this connection, both of you will be very courageous. Here, you two will be in this connection. You two will openly share your feelings. This connection will make you a daring person to face the world. With the Traveling card, after your marriage, I can see a lot of traveling. For some of you, there is a possibility that you will go for world tour, and for others, you are going to visit many beautiful destinations with your person. Here, I am feeling like you will visit hilly areas. One of your visiting destination could be mountain pilgrimage site. Overall, after your marriage, many new adventures is waiting for you. In this marriage, sometimes a situation may arise where one of you are going to compromise something for the happiness of your other person. In other words, you two will try to balance your relationship. And last question here we have is your person is going to be loyal with you? And the answer is yes. Your person will always be loyal with you. So hello group number 2. Today we are going to see how you will be a romantic bond with your future spouse. So we have King of Swords, Slowing Down card, King of Cups, 9 of Pentacles, Playfulness and Understanding card. So your person doesn't like to show their emotions in public. It's for some of you, not for all of your hubby or wifey. He or she is going to be a very private person. But in this romantic connection, you two will stay loyal to one another. Here, both of you will feel very extremely devoted for one another. This bond will be full of understanding. Your person will value you deeply, and the same goes for you. Your love relation with your spouse will be like where they will find your flaws charming. Your love connection will be unbreakable, irrespective of time or any situation. With Slowing Down card, you two are going to enjoy one another's time without any disturbance. No matter how much busy you are, but when it comes to your person, both of you will have abundant times. There will be no rushness in this connection. Through this card, Slowing Down card, I'm feeling for some of you, I'm feeling that until your marriage, you two will be never in a relationship, and after your marriage, your person will be your first and last love interest. So this romantic feeling will be a new for both of you, where both sides will take their time to express their feelings and enjoy this romantic journey. Your romantic bond with your person will be full of excitement. Here, you two are going to enjoy each other's company. Here, as I am feeling that this connection, this love or romantic bond will be new for you. So here there will be like you will have many lunch date or dinner date, or lots of gift exchange is going to happen. Sometime you two will throw occasional party at your home, and your family and friends will join you at those parties. So basically, lots of celebration is going to happen. As your married life will be will be surrounded with luxury. At the same time, with your relationship also, you two will enjoy all comfort that money can buy. This connection will provide peace and protection, and you two will push each other to achieve your dreams. With Playfulness cards, you two will share a light and positive energy with your person.
both of you will share light and positive energy with each other. Though for some of you, your person will be a little bit reserved, but in their personal space with you, they will be very playful, and both of you will improve or uplift each other's mood with a light energy. With one another's company, you two will be like a real person without guarding your true nature. Understanding and acceptance is the vibe I'm getting from this group. So in this romantic link, you two will understand each other like never before and will accept one another's both positive and negative traits. This connection will make you more open-minded, and your person's presence in your life will enlarge both of yours vision. And last question we have is your person is going to be loyal with you? And the answer is yes. With Knight of Swords, he or she is going to be very loyal with you and deeply devoted towards you. So that was for today. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I will meet you in my next video. Till then, bye bye. हेलो माय लवली सोल्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका रोमांटिक बॉन्ड कैसा रहेगा। तो हमेशा की तरह हमारे पास दो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आप अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज कीजिए, और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, साथ ही साथ एक जनरल रीडिंग भी है। सो आप वही मैसेजेस लिए जो आपके साथ रिजोनेट करती हो, और बाकी को छोड़ दीजिए। हमेशा की तरह हमारे पास दो ग्रुप है, सो अपना इंट्यूशन यूज़ करके कोई भी एक ग्रुप चूज कीजिए, और मैं आपको ग्रुप नंबर 1 में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आज हम देखेंगे कि आपके रोमांटिक बॉन्ड आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा। सो हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, द सन कार्ड, करेज कार्ड, ट्रैवलिंग एंड कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड। सो आपके रिलेशनशिप, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ एक ऑप्टिमिस्टिक रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इस कनेक्शन में आप एक दूसरे के प्रति या आप एक दूसरे की तरफ हमेशा फेथफुल रहोगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और यहाँ पे आप दोनों का जो आपस में प्यार होगा या फिर लव होगा, वो बहुत इंटेंस लव इस कनेक्शन में महसूस हो रहा है। और यहाँ पे जो कनेक्शन आपका, साथ ही साथ आपका जो कनेक्शन होगा ना, एक फ्रेंडली कनेक्शन भी होगा, या फिर ये कहूँ आप एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली जैसा बिहेव करोगे इस कनेक्शन में। और यहाँ पे आप या आपके फ्यूचर स्पाउस, या हो सकते हैं कि आप में से दोनों ही, मतलब आप दोनों में से किसी एक के पास शायद एक शायराना अंदाज जैसा होगा, और मतलब आप इस रिलेशनशिप में ना आप एक दूसरे को मतलब लव सॉन्ग या फिर लव को डेडिकेट करने में बहुत डेडिकेट करोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ आपका जो कनेक्शन है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका कनेक्शन एक स्पिरिचुअल लेवल पे होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप एक दूसरे, और जबकि ये रिलेशनशिप एक स्पिरिचुअल लेवल पे होगा, और यहाँ पे बहुत बार ऐसा होगा कि मतलब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो विदाउट एनी वर्ड और जेस्चर, ऐसा है। और दूसरे शब्दों में ये कहो कि आप एक दूसरे के फीलिंग्स को ना बिना बताए ही समझ पाओगे। और अगर आप ये वीडियो अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हो, जो लेडीज़ ये अपने फ्यूचर स्पाउस के फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि आप आपका जो हस्बैंड होगा उनकी लाइफ में आप एक बहुत मेजर रोल प्ले करोगे। आप उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वोमेन आप उनकी लाइफ में रहोगे। सन कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की जो रोमांटिक बॉन्ड होगा आपके पर्सन के साथ, वो बहुत एक हार्मोनियस होगा, और आप एक फन लविंग ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे के साथ बहुत मतलब आप लोगों का जो कनेक्शन होगा ना, वो फन लविंग कनेक्शन होगा, या फिर आप बहुत मतलब हंसी खुशी ऐसा मतलब मुझे दिखाई दे रहा है। और आप एक दूसरे के मतलब जो पर्सनैलिटी है, वार्मनेस है ना, वो आप एक दूसरे को बहुत पसंद आएंगे। आपके हस्बैंड का जो मतलब वार्मनेस, उनकी कैरेक्टर्स या पर्सनैलिटी जैसे होगे ना, आप उस पर्सनैलिटी को आप मतलब लव करोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस कनेक्शन में मतलब ऐसा होगा कि ये कनेक्शन आपके लिए ऐसा होगा कि यू कांट हेल्प बट मतलब आप एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप फ्यूचर फैमिली में इंटरेस्टेड हो, तो आप दोनों ही, आपके फ्यूचर स्पाउस और आप दोनों एक एक्सीलेंट पेरेंट्स बनोगे, ऐसा है। और यहाँ पे मुझे आप दोनों ना एक साथ मतलब बहुत जजोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर ये कहूँ कि आप एक पावर्ड कपल होगे, ऐसा है। इस कनेक्शन में ये कनेक्शन आप दोनों को बहुत करेजियस बनाने वाला है, और यहाँ पे ना आप एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करने वाले हो। और ये कनेक्शन आपको एक अंदर से मजबूत और हिम्मत वाला इंसान बनाएगा, ताकि आप वर्ल्ड को बिना किसी डरे या फिर कोई आप एक करेज के साथ वर्ल्ड को फेस कर सको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
ट्रैवलिंग कार्ड के साथ आपके मैरिज के बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे ट्रैवलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर योर मैरिज आप वर्ल्ड टूर पे जाओ, और बाकी के लिए यहाँ पे मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस आप विज़िट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो मतलब आपकी जो विजिटिंग डेस्टिनेशन होगी वो शायद ऐसा हो सकता है आप किसी हिली एरिया विज़िट करो, और आपके जितने भी विजिटिंग डेस्टिनेशन होगे ना उनमें से एक डेस्टिनेशन ऐसा होगा कि आप कोई मतलब पिलग्रिमेज करने वाले हो, जहाँ पे माउंटेन में कोई पिलग्रिमेज, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और इस कार्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको माउंटेन भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ ऊपर सन भी है, तो मुझे ऐसा इस कार्ड से ये मतलब पिलग्रिमेज का वाइब आ रहा है। और ओवरऑल आपके मैरिज के बाद एक न्यू एडवेंचर आपकी लाइफ में वेट कर रहा है, ऐसा है। और कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड के साथ ऐसा है कि हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे आपको मतलब आपके पर्सन के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बैलेंस होगा, और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा नहीं है कि आप ही कॉम्प्रोमाइज़ करोगे या फिर आपका पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ दोनों साइड से होगा, तो यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप जैसा मुझे दिखाई दे रहा है। और लास्ट में अगर लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपके पर्सन आपके लिए मतलब आपके प्रति लॉयल रहेंगे, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर है कि यस, आपके पर्सन आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे और वो हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, आज हम देखेंगे कि आपके रोमांटिक बोन आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा होगा। सो हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्लोइंग डाउन कार्ड, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लेफुलनेस एंड अंडरस्टैंडिंग कार्ड। सो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पे ये है कि पॉसिबिलिटी ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे ना वो अपने इमोशंस पब्लिकली दिखाना पसंद नहीं करते, या फिर ये कहूँ कि वो एक प्राइवेट पर्सन होंगे। बट इस रोमांटिक कनेक्शन में ना आप एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहने वाले हो, और यहाँ पे आप दोनों का जो आप एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे के प्रति आपका जो डिवोशन है ना वो एक्सट्रीम डिवोशन आपका एक होगा एक दूसरे के लिए, और ये कनेक्शन बहुत मतलब अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ होगा। आप इस कनेक्शन में आप दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, और यहाँ पे आपके जो पर्सन होंगे ना वो आपको बहुत वैल्यू करने वाले हैं, और ये आप पे भी लागू होता है। अब इस कनेक्शन में आप एक दूसरे को बहुत वैल्यू करोगे, और ये कनेक्शन ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर जो स्पाउस जो होंगे ना वो आपके फ्लॉस में भी आपकी मतलब खूबसूरती दिखाई देंगी उनको, मतलब आपके जो फ्लॉस होंगे ना वो भी उनमें भी उनको चार्मिंग दिखोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपका जो लव कनेक्शन होगा ना वो एक अनब्रेकेबल लव कनेक्शन होगा, चाहे कैसा भी टाइम क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कितने ख़राब या कैसा भी सिचुएशन हो या टाइम हो, आपका बोन हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रेकेबल होगा। विथ स्लोइंग डाउन कार्ड के साथ हमें ये दिखाई दे रहा है कि आप एक दूसरे के साथ जो टाइम आप एक दूसरे का टाइम बहुत मतलब इंजॉय करने वाले हो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और भले ही आपके लाइफ में आप कितने बिजी क्यों ना हो, लेकिन जब आपके फ्यूचर स्पाउस की बात आती है ना तब आप दोनों के पास बहुत अबंडंट टाइम होगा एक दूसरे के लिए, और इस कनेक्शन में कोई रशनेस नहीं होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और स्लोइंग डाउन कार्ड के साथ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के लिए आप दोनों ना आपकी शादी से पहले तक आप दोनों हमें मतलब कभी भी रिलेशनशिप में आप नहीं थे, ऐसा मुझे दिखाई दे। और आफ्टर योर मैरिज आपकी शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपका पहला और लास्ट प्यार होगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो ये कनेक्शन आपके इस जो रोमांटिक फीलिंग होगा ना आप लोगों का, तो ये रोमांटिक फीलिंग आप लोगों के लिए दोनों के लिए एक नया फीलिंग होगा, जहाँ पे आप दोनों अपने साइड से टाइम लोगे और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और इस रोमांटिक जर्नी को एंजॉय करोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके जो रोमांटिक बॉन्ड होंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, जो आपका रोमांटिक बॉन्ड होगा वो बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ होगा, और यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करोगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपका पहला लव इंटरेस्ट हो, आपका पहला रिलेशनशिप हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे शादी के बाद आप दोनों बहुत मुझे दिखाई दे रहा है कि लंच डेट पे जा रहे हो या डिनर डेट पे जा रहे हो, और मतलब आप दूसरे के साथ बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। और यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ना बहुत मतलब गिफ्ट एक्सचेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप अपने फ्यूचर स्पाउस को गिफ्ट दोगे, वो भी आपको गिफ्ट देंगे, ऐसा गिफ्ट एक्सचेंज मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके मैरिज के बाद ऐसा होगा कि आप दोनों ओकेजनली कभी कभार मतलब ओकेजन वाइज कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो, और आपकी फैमिली या फिर आपके फ्रेंड्स उस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। और सो बेसिकली यहाँ पे मुझे बहुत सारे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहे हैं आपके मैरिज के बाद।
जैसा कि आपके मैरिज लाइफ में बहुत लग्जरी रहेगा, इन द सेम वे आपके रिलेशनशिप में भी आप बहुत आप कंफर्ट इंजॉय करने वाले हो, और जो कि पैसे से जितनी खुशियाँ आप अपने लाइफ में इंजॉय कर सकते हो वो सभी आप खुशियाँ आप इंजॉय करने वाले हो। और ये कनेक्शन ना आपको पीस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और आप दोनों ऐसे इंसान हो ना जो एक दूसरे को पुश करोगे ताकि आप अपने लाइफ में जो आप दोनों का ड्रीम है ना उससे आप अचीव कर सको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। प्लेफुल कार्ड के साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लाइट और पॉजिटिव एनर्जी शेयर करने वाले हो, और भले ही आप में से कोई आपके इंसान थोड़े रिजर्व्ड हो, लेकिन उनके पर्सनल स्पेस पे जब वो आपके साथ होंगे वो थोड़ा वो बहुत प्लेफुल होने वाले हैं, और आप इस रिलेशनशिप में ना आप एक दूसरे के मूड को अपलिफ्ट करोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस कनेक्शन में जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे ना तो आपका कोई ऐसा नहीं होगा आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहोगे, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि आप जब अपने पर्सन के साथ होगे तो आप अपने कोई विदाउट एनी गार्डिंग योर ट्रू नेचर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप वाकई हो, आप वाकई में आप जो हो, जैसा आप इंसान हो ट्रूफुली, वो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को वैसे ही दिखाई दोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस रिलेशनशिप में मुझे अगर आपके इस ग्रुप के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ये वाइब मुझे इस ग्रुप से बहुत आ रहा है, और आपके इस रोमांटिक लिंक में भी आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और आप एक दूसरे को इतना अच्छे से समझ पाओगे, पहले आपको किसी ने इतना अच्छे से नहीं समझा जितना आपके फ्यूचर्स पास आपको समझ पाएंगे, और वहीं भी उनके लिए भी ऐसा सेम ही होगा। और ये कनेक्शन आपको ना बहुत ओपन माइंडेड बनाएगा, और आपके पर्सन के जो प्रेजेंस होंगे ना आपकी लाइफ में वो आपके जो लाइफ के लिए विजन है, या फिर वर्ल्ड को लेके किसी भी चीज़ को लेके अपने लाइफ को लेके जो आपका विजन है ना वो उसको बढ़ाएगा, या फिर आपका विजन ब्रॉड करेगा ये कनेक्शन। लास्ट हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपके पर्सन आपके लिए लॉयल रहेंगे, तो या फिर तो आंसर है कि हाँ, विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वो आपके लिए हमेशा आपके प्रति लॉयल रहेंगे और हमेशा आपके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये था आज के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।